তেওঁলোকে ইয়াত বিভিন্ন আঁচনি ৰাইজক আবহাৱা কৰিব বিচাৰিছে। তেওঁলোকে যিয়ে তেওঁলোকে ৰাজনীতি নকৰক, যিমানে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী সভা নকৰক, ৰাইজে আৰু এইবাৰ বিজেপি দলৰ চৰকাৰ পৰিৱৰ্তনৰ নামত অহা চৰকাৰখনে আজি ৰাইজক যি বেদনা দিলে, কাৰনামা আইনখনত 5 জনে গুলীয়া হত্যা কৰিলে, প্ৰত্যেক স্তৰৰ লোকক কৈছিল, অংগনবাদী কৰ্মীসকলক কৈছিলে মজুৰি বৃদ্ধি কৰিম, আশা কৰ্মীসকলে কৈছিলে মজুৰি বৃদ্ধি কৰিম, টেট শিক্ষকসকলক কৈছিলে নিয়মা কৰিম, 6 জনগোষ্ঠী কৈছিলে জনজাতিকৰণ কৰি দিম, চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকক কৈছিলে 351 টকা মজুৰি কৰি দিম, মাটি পটা দিম। কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাছিলে? চাইকেলৰ জেগাত স্কুটি, বিয়া পাতিলে শুন। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াত আহিছে ৰেলী কৰিবলৈ। আজি দেৰগাঁও, আজি তিতাবৰ, আজি খুমটাই, আজি তিয়কৰ, আজি আমগুৰি মানুহ আনি পেলাই গৈছে। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মই চেলেঞ্জ দিছো, ইয়াত ৰেলী কৰক। ইয়াত যদি অকল মইনী সমষ্টিৰ ৰাইজক লৈ ৰেলী কৰে 2000 মানুহ নহব, 2000 বাদ দিয়ক, 1500 মানুহ নহব হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সভা। আজি ইয়াত 15000তকৈ অধিক মানুহ হৈছে। আজি 12000 আমি চকীয়াই আনিছো। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াত 12000তকৈ বেছি মানুহ ইয়াত আমি চকীয়াই আনিছিলো, 15000তকৈ বেছি মানুহ হৈছে। সাহস আছে যদি আপোনাৰ আহকে ৰেলী কৰক। 2000 মানুহ নাই আপোনালোকৰ, অকল কেৱল মইনী সমষ্টি ৰাইজ আহিছে। মইনী সমষ্টি ইলেকশ্যন, দেৰগাঁও, খুমটাই, তিতাবৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই ইয়াত কি দেখাব আহিছে? राहुल गांधी सर, आपके दिल्ली वाले एक स्मृति बाइडो आए थे, मोटकी बाइडो, यहाँ के भाषण दिए, और स्मृति ईरानी बाइडो आए थे महीने में। बीजेपी तो कोई काम नहीं कर पाया, अभी एक को भेज रहा है। स्मृति ईरानी बाइडो आए, कामाख्या तसा आए, सर्वेंद्र सोनोवाल आए, 2000 से ज्यादा आदमी नहीं हुआ इधर। फिर हेमंत बिश्व शर्मा आए, अभी मिथुन चक्रवर्ती आएगा। मैं कह दी जो ना पेंट सार्ट खोल खाई जो तथापि बिजेपि निजिके एबार प्रियंका चोप्रा, दीपिका पादुकोण, सानी लियोनी, नेहा काक्कर आहि पेলাই बिजेपि प्रचार चलाय, इको भोट नापाय। हाय हेलो এইবোৰ কৰি লাভ নাই। আজি এবাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ মহাজোঁট বন্দনৰ চৰকাৰ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব গৈ আছে। ৰাহুল গান্ধী আজি এই যোনটো ফেকু চুলিদাৰী পকা ফেকু, এই ফেকু যিটো আজি কৰিলে, এটা আজি সম্পত্তি মইনী ৰেলৱে ষ্টেচন আজি বিক্ৰী কৰিলে আদানী গোটত। আজি আগতে ডোচা খাবলৈ डोसा खाने के लिए हम लोग जाते थे, 20 रुपया वाला डोसा आराम से घुसते थे, खा के चले आते थे। अभी 20 रुपया वाला डोसा खाने के लिए 50 रुपया वाला प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा। अदानी को दे दिया, सब बिक्री करके जा रहे। कले कागज कल खुलिम, उद्योग प्रतिष्ठा करिम, निबनुआ আজি हाहाकार, निबनुआ संख्या बाढ़ी गई আছে। महिला सबलीकৰণৰ नामत আজি আহিলে এই চৰকাৰ, আজি মহিলা শিশু নিৰ্যাতন বাঢ়ি গৈ আছে। সন্মানীয় ৰাইজ, मैं दीघले बक्तव्य नाराखो। इतना धर्मेन्द्र सोनोवाले बक्तव्य दाঙি ধৰিছিলে যে ইয়াত মইনী সমষ্টিত উন্নয়ন হোৱা নাই, सबका साथ सबका विकासৰ কথা কৈছিল, পুঁজি নিদিলে। এটা আধাৰশিলা কৰিবলৈ আজিলৈকে 5 বছৰত এটা আধাৰশিলা, এটা ৰাস্তা, এটা দলঙৰ আধাৰশিলা কৰিব নাহিল। 5 বছৰত হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা আধাৰশিলা, এটা আঁচনি, এটা আধাৰশিলা কৰিব নাহিল। ইয়াৰ ৰাইজক কৈছে দুমাহ মূৰে আহিম, আপুনি চান্স নাপায়। আৰু এবাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আপুনি আৰু ভৱিষ্যতে কেতিয়াও মন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শুনি লওক, মহাজন বন্দৰ চৰকাৰ আজি বাওঁপন্থী CPIML আমাৰ লগত আছে, আজি বিভিন্ন দল সংগঠন আমাৰ লগত আছে, আমাৰ চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। মই দীঘলে বক্তব্য নাৰাখো। মই আপোনালোকক বহুত ভাল পাওঁ, মইনী ৰাইজ আপোনালোকক বহুত ভাল পাওঁ। এতিয়ালৈকে 52 বাৰ ব্লাড দিলো, 100 বাৰ ব্লাড দিব মন আছে আপোনালোকৰ কাৰণে। দিন ৰাত এককৈ কাম কৰি আছো, মাৰ আধৰুৱা কাম কৰিবলৈ মন আছে। মোক জানো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু মোক আপোনালোকে জিকাব। আমি জিকিম। মই এবাৰ 3 নম্বৰ বাৰ মই জিকাৰ পিছত এবাৰ 4 নম্বৰ বাৰ জিকি এবাৰ মন্ত্ৰিত্ব মই নিশ্চয় পাম। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া মোক নিশ্চয় দিব, প্ৰদ্যুৎ বল্লভ ডাঙৰীয়া মোক নিশ্চয় দিব, জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া মোক নিশ্চয় দিব। বহুত কাম কৰিব মন আছে, আশীৰ্বাদ কৰিব। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ, জয় হিন্দ, জয় অসম। আদৰণি এই ভাষণত তেখেতে সকলোখিনি সামৰি ভাষণ ৰাখিলে, তাৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে
শ্ৰদ্ধাৰ সাংসদ অসমৰ নেতা আমাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ছাৰ, আমি তেখেতক ভাষণ ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আমাৰ নেতা শ্ৰী ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহিছে। মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো, এজাউৰি সজোৰে হাত চাপৰিৰে তেখেতক আপোনালোকে আদৰণি জনাওক, যাতে এই হাত চাপৰিৰ আৱাজে সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিধ্বনি হয়, যাতে বুজি পায়, যাতে বিজেপি দলটোৱে বুজি পায় যে আজি এই সংকটৰ সময়ত অসমে আজি যি সংকটৰ মাজেৰে গৈছে, আজি কংগ্ৰেছ দল অসম আৰু অসমৰ বাসিন্দা অসমীয়া মানুহৰ লগত সুখে দুখে সদায় আহিছে। যেনেকৈ যুগে যুগে অসমৰ কংগ্ৰেছ দলে এটা আঞ্চলিকতাবাদী দলৰ দৰেই অসমৰ স্বাৰ্থ সদায় ৰক্ষা কৰি আহিছে। শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আজি আমাৰ অসম আৰু অসমীয়াত্বৰ ওপৰত এক নাগপুৰীয়া অপসংস্কৃতিয়ে আমাক আক্ৰমণ কৰিছে অহৰহভাৱে, আৰু এই আক্ৰমণক আমি উফৰাবই লাগিব। আমি বিভিন্ন ধৰণে সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ 2021 এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি দিছপুৰত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন এখন চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবই লাগিব, আৰু এই যুদ্ধত আপোনালোক সকলো অংশীদাৰ হৈ একেলগে কান্ধত কান্ধ মিলাই এই যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হওক, এই আহ্বান জনাই সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো। ধন্যবাদ। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জিন্দাবাদ, কংগ্ৰেছ জিন্দাবাদ, কংগ্ৰেছ জিন্দাবাদ। সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈদেৱক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ মাজতে আমি আশাৰে বাট চাই থকা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱ নেতা আৰু ৰাহুল গান্ধীজীৰ ভাষণ শুনিবলৈ আমি আপ্লুত হৈ আছো। ইয়াৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীজীক ভাষণ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। কংগ্ৰেছ জিন্দাবাদ, কংগ্ৰেছ জিন্দাবাদ। जितेंद्र सिंह जी, प्रद्युत बोरदोलोई जी, दीप गोगोई जी, हमारे कैंडिडेट्स रूपज्योति कुर्मी जी, भास्कर ज्योति बरुआ जी, स्टेज पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देश की हालत आपको दिख रही है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने 8 बजे रात नोटबंदी की, 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द किया। आपसे कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके घरों से, आपके जेब से आपका पैसा लिया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों को दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू की, कहा सबको फायदा होगा, एक टैक्स होगा, सरल टैक्स होगा। जीएसटी लागू हुई, पता लगा 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स। वो जो करना चाहते हैं वो सीधे तरीके से नहीं बताते। उनको सिर्फ यहां आना था और कहना था मैं प्लाईवुड की इंडस्ट्री को खत्म करना चाहता हूं, मैं प्लाईवुड की इंडस्ट्री को मारना चाहता हूं, नष्ट करना चाहता हूं, ये कह देते। क्योंकि जीएसटी ने और नोटबंदी ने यही किया।
काले धन को कुछ नहीं होता है। छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, किसान, मजदूर, इनके लिए यह सरकार कुछ नहीं करती है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आपसे कहा था, याद होगा आपको, कि गैस के सिलेंडर का दाम कम करेंगे। याद है आपको? बोला था नहीं बोला था? यूपीए के समय कितने रुपए का मिलता था? कितने का? आज कितने का मिलता है? यूपीए के समय 400, एनडीए के समय 900। और नरेंद्र मोदी जी आपसे आगे कहते हैं कि देखो मैंने गैस का दाम कम कर दिया, हर घर में मैंने गैस पहुंचा दी। फायदा किसको हुआ? हमारी माताएं बहनों को नहीं, गरीब परिवारों को नहीं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े वही 2-3 उद्योगपतियों का फायदा हुआ। आपके जेब में से पैसा निकला और सीधा उनके जेब में गया, या उनका टैक्स माफ होता है, उनके लोन माफ होते हैं, आपका कुछ नहीं होगा। यह सच्चाई है। और इसलिए इस चुनाव में हमने आपको 5 गारंटी दी है। मैं जानता हूं कि यहां पे चाय मैदान में काम करने वाले मजदूर हैं, यहां महिलाएं आई हैं। हमने आपके लिए 5 गारंटी देने का वायदा किया है। मैं ये गारंटियां आपको पढ़ना चाहता हूं। पहली गारंटी, जो ये सीएए है, इसको हम असम में और हिंदुस्तान में लागू नहीं होने देंगे। राहुल गांधी कांग्रेस, कांग्रेस। आप देखिए, बीजेपी ने इसको लागू करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में, पूरे देश में इनके खिलाफ खड़ी हो गई और हमने सीएए को देश में रोका। और मैं पहली गारंटी आपको दे रहा हूं, असम में सीएए नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कांग्रेस। दूसरी गारंटी, आपको याद होगा, बीजेपी ने आपसे वायदा किया था, चाय मजदूर को 351 रुपीस बीजेपी ने देने का वायदा किया था। याद है आपको? याद है? कितना मिल रहा है? कितना मिलता है आज? कितना? 165, 167। दूसरी गारंटी हमारी यह है, 365 आपको मिलेगा। 365 रुपया, 365 रुपया आपको मिलेगा। अब देखिए, हम में और मुझ में और बीजेपी में फर्क देखिए। बीजेपी अलग अलग वायदे करती है, जहां भी जाते हैं कोई ना कोई नया वायदा कर जाते हैं। मैं जो बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलने आया हूं। आप जाइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुआ, पंजाब में चुनाव हुआ, आप मेरे वहां भाषण देख लीजिए। मैंने चुनावी भाषण में 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था कि इन स्टेट्स में किसान का कर्जा माफ होगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के बाद 6 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। मैं आपको यहां गारंटी दे रहा हूं, अगर यहां पे कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना
मेरा वायदा है, उसका नहीं, मेरा वायदा है कि 365 रुपए आपको मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह ले। कांग्रेस जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद। और कांग्रेस चेक करना है तो छत्तीसगढ़ में चले जाइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब में जाइए, वहां पे आपके कोई जान पहचान के लोग होंगे, उनसे पूछिए। चुनाव से पहले राहुल गांधी आया था, राहुल गांधी ने कर्जा माफी की बात की थी, क्या हो गया? आपको जवाब मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में जाके पूछिए किसानों को धान के लिए क्या दाम मिलता है, आपको वो जवाब दे देंगे, 2000 रुपए मिलता है। कांग्रेस पार्टी ने यह काम किया। तो हमारी दूसरी गारंटी 365 रुपए चाय मजदूरों को मिलेगा। तीसरी गारंटी 200 यूनिट बिजली हर परिवार को मुफ्त में कांग्रेस पार्टी देगी। चौथी गारंटी महिलाओं को 2000 रुपए महीने का कांग्रेस पार्टी देगी। और पांचवा वायदा, शायद सबसे जरूरी वायदा, पूरे देश में आप जाइए, नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप जाइए, हर स्टेट में बेरोजगारी बढ़ा दी है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि जो छोटे मिडिल साइज बिजनेस हैं, नोटबंदी से, जीएसटी से उनको खत्म कर दिया। किसानों पर यह आक्रमण चालू कर दिया इन्होंने। 3 नए बिल लाए हैं, किसानों का जो है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे देश में इन्होंने बेरोजगारी फैला दी। और इसलिए हमारी पांचवी गारंटी है कि असम में हम आपको 5 लाख रोजगार देंगे। कैसे देंगे यह भी बता देता हूं। बहुत सारे सरकारी रोजगार आज वैकेंसियां हैं, उन सब वैकेंसीज को हम भर के दिखा देंगे। और जो पहले हमने असम के लिए किया था, बिजनेस के लिए जो हम इंसेंटिव देते थे, जो टैक्स रिलीफ देते थे, छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, किसानों के लिए, वो हम फिर से आपको देंगे। और जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, जैसे यहां पे आपका प्लाईवुड का बिजनेस है, उन बिजनेसेस की हम मदद करेंगे, उन इंडस्ट्रीज की हम मदद करेंगे। और पूरे असम में लाखों युवाओं को हम रोजगार देने की गारंटी देते हैं आपको। और शायद सबसे जरूरी बात जो बीजेपी ने असम में की है, और सिर्फ असम में नहीं, पूरे देश में ये करते हैं, जो आपकी संस्कृति है, आपकी भाषा है, आपका इतिहास है, आपका भाईचारा है, इस पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण करती है। हम आपकी भाषा की, आपके ट्रेडिशंस की, आपकी संस्कृति की, आपकी हिस्ट्री की रक्षा करना चाहते हैं। ये जो प्रदेश है, ये आपका प्रदेश है, इसको नागपुर से नहीं चलाया जाना चाहिए। पूरा का पूरा असम ये दूसरों को पकड़ा रहे हैं, बाहर के लोगों को दे रहे हैं। आपका यहां पे एयरपोर्ट था, गुवाहाटी में एयरपोर्ट है, 2000 करोड़ रुपए असम को सरकार ने दिया था, एयरपोर्ट भी देके अदानी जी को पकड़ा दिया है। तो जो आपका है, ये आपसे छीनकर उन्हीं 3-4 उद्योगपतियों को देते हैं। एयरपोर्ट हो, टी गार्डन्स हो, जो भी आपका है, उसका पैसा ये आपसे छीन के ले जाते हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, महाजोत की सरकार आएगी, आप सबकी सरकार होगी, आपकी रक्षा करेगी, गरीबों की रक्षा करेगी, कमजोरों की, किसानों की रक्षा करेगी, और जो आपका है वो आपको दिलवाएगी। आपका पैसा शिक्षा में, स्वास्थ्य में और आपके विकास में जाएगा। 2-3 बड़े उद्योगपतियों की